आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अनु मुंजाल आंटी को। अनु आंटी आए और सत्संग शेयर करें। It's actually so amazing that today morning when I got up, I was thanking Guruji for the lovely day, and I wanted that Guruji, आप मेरे साथ हो, अपनी presence feel कराओ, जो कि वो हमेशा ही रहते हैं, but still we want something special on the day that we are born on. So I was just thinking कि क्या पता मेरा सत्संग आज हो जाए, and in the evening I got a call where I was supposed to do my satsang, and nothing more overwhelming than this, because it's Guruji who made it happen, and who, the innermost desire, or you can say the thought that I had, Guruji just made it happen. So that is his amazing magnanimity कि इतने गुरुजी हमारा सुनते हैं और हर इनर थॉट को भी वो पूरा करते हैं. So I hope I'm clear to all of you. I'll state back to the times when I had met Guruji, and it was in November 2005. And when I had started going to Guruji, one of my friends and a neighbor, she told me that there's one Guruji who blesses you with the chai prasad and cures all your problems. So it was a day of Karwa Chauth, and I was just the way we do the ritual of rotating the thalis, I was doing that. And while doing this only, I came to know about Guruji Maharaj. So me and my husband, we decided, okay, we will once go to Guruji and get our, go and take his blessings. So that very day, it was, I can say that at that point of time, it was long back in 2005. I had my daughter, I have one daughter, and she was just 4 years old. And there were lots of things, everything was working well. I had everything, but then there was no completion, no mental peace, you can say, or nothing was complete. There was some kind of a void in everything, my health, the relationships, the finance, the work. So name a thing, and I was not very contented with the way the things were. So we thought of, I had 1,000 questions in my mind that once I go there, I'm going to ask Guruji ki aisa hai, waisa hai. But so we started our this thing for Guruji. We went for his darshan, and on the way, my husband wanted to go to the washroom. And I was telling him, we were in the car only, I said, you should have gone from home, because हमें कितनी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, वहां पे जाके हम वॉशरूम थोड़ा ढूंढेंगे, एंड इट डजंट लुक गुड कि आप घर से नहीं जा रहे हो एंड वहां पर जाके देख रहे हो. So this conversation got over in the car. So when I entered the Empire Estate, Guruji Maharaj was sitting on his gaddi, and there were lots of people around him. So the moment I entered, Guruji told, इतनी दूर से अपनी गद्दी पे बैठे हुए बोल रहे थे, मुझे कहते हैं घर से वॉशरूम होकर आया करो. And it was so embarrassing for me, and I felt like, that Guruji scanned us. This conversation was happening when we both were in the car, and how Guruji is asking me that घर से bathroom होकर आया करो. I felt very ashamed of myself, and I told my husband, see, because of you I had to listen to this. Anyways, this was a sign of Guruji to tell us that I am omnipresent, I know what all is happening with you, and I'm all the time with you. So nothing is by chance or choice. Nothing is by chance or a coincidence. It's his choice actually, and he knows what's all happening with us and how we are. So, Anju aunty, sorry to interrupt. Anu, आंटी, you would like रिक्वेस्ट है Hindi? हाँ जी, हिंदी में आप प्लीज शेयर करेंगे तो सब संगत को इजी रहेगा. Can I be bilingual? Can I use both the languages? हाँ जी, sure. Because I'm sorry. No, done. So sorry. Okay. So जब गुरुजी ने मुझे बोला कि घर से बाथरूम होकर आया करो, तो बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ. एंड बट एनीवेज हम लोग वहां बैठ गए जाके. तो गुरुजी ने मेरे से पूछा किधरों आए हो, एंड आई सेड गुरुजी ग्रेटर कैलाश से. कहते गटर कैलाश? आई सेड हाँ जी गुरुजी. तो मुझे बोलते हैं बैठ जाओ. सो हम दोनों बैठ गए, एंड मैंने जेमस्टोन पहना हुआ था, एमरल्ड पन्ना बोलते हैं जिसको. somebody had told me कि ये पहनो, it's a good one. So the moment Guruji saw it, Guruji told me एक ही पाया हुआ है.
आई सेड गुरुजी ये एमरल्ड है, मुझे किसी ने बताया था कि पहनो। कहते हैं इसको उतार उतार दे। सो आई सेड हाँ जी, मैंने इमीडिएटली वो रिंग उतार दी एंड गुरुजी ने तब मुझे बोला, ए तूने ग्रह पाए हुए ने एंड इसको नहीं पहनते हैं, ये तूने ग्रह पहने। सो आई सेड हाँ जी गुरुजी। सो दैट मोमेंट ओनली, without even one single thought in my mind, I just took it off. So that was a day when, one second, my dog is barking, one second. So then Guruji मैंने मेरे से पूछा कि किधरों आए हो, तो आई सेड गुरुजी बेटे कैलाश, तो उन्होंने बोला गटा कैलाश। एंड उसके बाद गुरुजी टोल्ड मी कि 10 तेनू की चाहिए। तो मेरे को ट्रस्ट मी, आई वांटेड एवरी डैम थिंग, आई वांटेड एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। आई सेड गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, वो भी दिमाग में उन्होंने डाला कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर अगर मैं उसको क्वांटिफाई करती दैट आई नीड समथिंग, then at that moment of time I would have got, and the blessings would have been over. But I asked for the blessings which were never ending, incessant. So my खुद तो दिमाग नहीं होता है, but गुरुजी ने वो दिमाग में उस समय बात डाली and it happened. Then he again asked me, तेनू की चाहिए? I said गुरुजी आपकी blessings, and then he said जाके बैठ जा। So इतना I had, जब मैं गई थी तो I had thought I'm going to ask him so many questions, but trust me वहां जाके I was so blank. I didn't even know what to ask because I didn't know I was standing in front of a magnanimity. इतना aura था गुरुजी का that I could not keep my eyes off him. He was so big, so magnanimous, so amazing in his aura, as if I'm sitting in front of the source of life. So those moments are still very fresh in my mind कि हमें कितना अच्छा लगता था गुरुजी को एडमायर करना और देखना। और वो फर्स्ट टाइम ही था, तो आई न्यू कि आई एम एट वन प्लेस विच इज दी एवरीथिंग, यू नो, विच इज काइंड ऑफ माई कंप्लीशन ऑफ माई जर्नी ऑफ लाइफ स्पिरिचुअलिटी। एंड देन आई फेल्ट लाइक गोइंग एवरी टाइम। एंड उन दिनों में थर्सडे टू संडे होते थे, गुरुजी का दरबार लगता था। एंड ट्रस्ट मी, आई वांटेड टू गो एवरी डे, but I had a very small daughter that time. She was just 4 years, so I couldn't make it for 4 days, but yes, I did go on 2 days, Thursdays and Sundays. And इतने प्यार से गुरुजी देखते थे और बात करते थे कि आई एम श्योर वो किसी ह्यूमन कैपेसिटी में नहीं है, इट इज द डिवाइन लव दैट वी एक्सपीरियंस विद गुरुजी। इतना प्यार, इतना ओवरवेलमिंग, इतने बड़े भगवान होकर हमारे लेवल पे आके हमसे वो बात करते थे और हमारे मन के क्वेश्चंस और दुविधा सब आंसर करते थे। एंड आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क गुरुजी, एंड ट्रस्ट मी, मैं उनको इतना तंग करती थी, गुरुजी ये गुरुजी वो, और वो सब हमारे लेवल पे आके आंसर करा करते थे। मतलब आई एम श्योर कि ये दिस इज नॉट अ मतलब दिस इज सो अमेजिंग एंड पावरफुल कि वो मोमेंट्स के लिए दे आर सो मच इनफ कि आई कैन लिव माई लाइफ एक्चुअली। सो मुझे बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस होता था दैट आई हैड टू बी ऑन द स्टेरॉइड्स एंड नेबुलाइजर्स। सो even steroids had stopped working, to be honest. So I went to Guruji, and when I used to go to him, so एक दिन मैंने उन्हें बोला, गुरुजी मैं अपने लिए लोटा ब्लेस करा लूं? तो कहते हैं क्यों, तेनू कोई लोड़ नहीं। ऐसे गुरुजी आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे इतना ब्रोंकाइटिस हो रहा है और आप मुझे कह रहे हो कि, कहते तेनू कुछ नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स माय ब्रोंकाइटिस had started going down and down, and today is that day when I actually don't have the requirement of any nebulizers or steroids. Sometimes yes, during the change of season it is just the 10% or maybe 5% that I experienced, which was so much that at that time, I mean compared to that, it's just the 5% which I experience, and I believe वो हमारे खुद के कर्मा है for which we have to bear, and that too in such a comfortable way जो हमारे लिए गुरुजी ने सारी चीजें इतनी स्मूथ कर दी हैं। Then I'll tell you, in January 2006, हम November 2005 में गए थे, Jan 2006 में my father, he was very unwell and he had pneumonia. So he was admitted in the hospital and he had sleep apnea था उनको, which was not detected, because of which the condition of his lungs had really deteriorated. And doctors said कि इनके बचने के चांस नहीं है। उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया था because he could not breathe on his own and he was put on the life support. So it was Monday and हम Thursday को I went to Guruji because Monday तो मंदिर खुला होता था, बड़ा मंदिर, but
we couldn't meet Guruji. So Thursday when I went to Empire Estate, Guruji, I was sitting there probably at the last, last place of the room near the DJ, जहाँ पे DJ play होता था, DJ uncle बैठे होते थे. So I was sitting there with my eyes shut, and I had a vision in which I was फीलिंग कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने पापा का वेंटिलेटर उतार दिया है और कहा है कि इसको उतार, ऐसी कोई लोड नहीं है. एंड हम लोग बहुत मतलब, एंड देन आई ओपन माय आईज, आई रियलाइज कि आई एम तो सिटिंग इन द मंदिर, एंड यहाँ पे तो मतलब वो सिर्फ मेरा एक विजन था. सो व्हाइल गोइंग वी हैड टू टेक आज्ञा फ्रॉम गुरुजी, एंड मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आई एम लीविंग, अब आप आज्ञा दे दीजिए, एंड मेरे फादर बहुत बीमार है. सी, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव गॉट no belief in the miracles that happen, because हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था इतने अमेजिंग इंसिडेंट्स को लाइफ में जो हमें गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस हुआ. सो स्टिल गुरुजी टोल्ड कि गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, एंड वी केम. सो माय हस्बैंड सेड, आई एम श्योर योर फादर डजंट हैव अ लाइफ एनीमोर, बिकॉज गुरुजी ने कुछ नहीं कहा. सो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, to my utter astonishment, Guruji ka my dad's ventilator had been removed, और वो उसी समय उतरा था जब वो मुझे विजन आ रहा था. So it was not a mere vision, it was a reality which was happening simultaneously. So I was so thankful to Guruji that within, I had just started going कि गुरुजी ने कितनी amazing बात कर दी, because ventilator पे से बचना is not very easy thing, and everybody cannot be out of it. So next day I went to say thanks to Guruji, which was Saturday, and तब मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी thank you so much, my father is all right and he's fine. तो गुरुजी said, देखा फिर कर देता. So that was a day of my complete surrender, and you can say belief in him, the resurrection of the faith, because I had 1,000 questions to ask him all the time, but that moment I was like quiet. So Guruji, मतलब जब आपको देखते भी थे तो you felt so amazing, something so penetrating कि इतनी divinity, इतनी affection से आपको वो देखते थे that you wanted कि वहीं पे रहो, you never felt like coming home. So one day there was some exhibition which had to be put. So Guruji told me कि मेनका गांधी ने exhibition लगाई है, तू जाके ना 2 paintings खरीद के आना. तो I said, हाँ जी गुरुजी, because उनका हुक्म मानना तो it was our duty. And I went, the exhibition was in one of the hotels, maybe probably Hyatt, I don't even remember exactly. So वहां पर I was looking for the 2 paintings that Guruji had told me. Now every painting was very expensive. I was just carrying 11,000 in my pocket, and I had the cards, credit cards, but no cash. So Guruji ने जब मुझे बोला तो वहां कोई भी पेंटिंग 20,000 25,000 से कम नहीं थी. Anyways, I thought, okay, I will use my card. Then suddenly in the corner, I found 2 paintings which were 5,500 each. So that makes it to be total of 11,000. And I immediately got them packed and brought them home. उनमें से एक फोटोग्राफ, एक पेंटिंग थी विष्णु जी की with his 2 wives, and एक थी लॉर्ड शिवा की जो काशी विश्वनाथ वाले हैं बनारस. So मैं वो लेकर आई, and next day I went to Empire Estate and told Guruji, गुरुजी मैं वो पेंटिंग्स लेकर आ गई हूँ, बट आई नेवर मेंशन कि उनमें क्या है. तो गुरुजी मेनका गांधी को बोलते हैं, मेनका देख है तेरी एग्जीबिशन इज गई सी, एंड ए शिवा घर लेके आ गई. सो आई वाज सो एस्टोनिश्ड कि गुरुजी कितने, मतलब हाउ ही रीड्स आवर माइंड्स, आवर थॉट्स. वी तो आर काइंड ऑफ ही इज अ स्कैनर who we cannot hide anything, because Guruji ko to sab pata, is omnipresent, omnipotent, he is the malik of the world, for the universe. And I was sure that time, that I am definitely in front of Lord himself, God himself, who is manifestation of Lord Shiva, a human manifestation of God. Because हम लोगों ने किसी भी भगवान को देखा तो नहीं था, but here we could see live God who could do everything for us, and who was so much full of love and affection for us, that it is not in human capacity for any human being to be like that, the way our Guruji was. एंड गुरुजी के साथ इस तरह फिर जर्नी मेरी होती रही, एंड मैं वहां बहुत जाती थी राधा. मतलब आई फेल्ट लाइक गोइंग एवरी डे, बट माय हस्बैंड सेड नहीं, इतना रोज नहीं जाने देता था, बिकॉज ही हैड टू टेक केयर ऑफ माय डॉटर. वो सिर्फ 4 years की थी, तो ही हैड टू
रियली टेक केयर ऑफ हिम। तो गुरुजी को मैं बोलती थी, गुरुजी मेरे को ना ज्यादा नहीं आने देता है मेरा हस्बैंड। तो कहते कोई गल नहीं, वो बहुत चंगा मुंडा है। ऐसे आपको चंगा लगता है, वो मुझे आने भी नहीं देता। कहते नहीं नहीं वो बहुत चंगा है। मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो किसी को चंगा कह के ही चंगा बना देते हैं, चाहे वो बंदा हो या ना हो। मतलब ही इज सो अमेजिंग इन द वेज। फिर एक बारी मैं और मेरे हस्बैंड की किसी बात पे बात हो रही थी। ही सेड ठीक है, अगर गुरुजी कुछ है ना तो वो मेरी सिस्टर का नाम बताएं, वो लंदन में रहती है। मतलब वो लंदन में जो रहती है। Now she, my sister-in-law was in London. She is a doctor by profession, dental doctor, BDS, and she had some issues with her in-laws, and she had come to India after 4 months, मतलब 3 to 4 months, जब हमारी ये बात हुई थी, and हम बात करके खुद भूल गए थे। So it was a Guru Purnima day, और मैंने उसको बोला कि चल I'll take you to Guruji, and I took her to Guruji. It was 11 o'clock when बड़ा मंदिर में हम गए थे, and Guruji was there. And जैसे ही मैंने गुरुजी के पैर छुए तो कहते कि ए कौन है? आई सेड गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ है। कहते ननान है तेरी? आई सेड हाँ जी। तो वो गुरुजी के आगे झुकी तो गुरुजी बोलते हैं आ गई डॉक्टर चेतना मेहता, एंड ही नेम्ड हर। मतलब जो मेरे हस्बैंड ने मेरे से 3-4 महीने पहले घर में बात की थी कि अगर गुरुजी कुछ है तो नाम बताए मेरी सिस्टर का, उन्होंने उसी समय वो बात करी मेरे आगे। एंड मेरे को देख के जैसे आईज विंक करते हैं, आईब्रोज ऊपर करते हैं, वो ऐसे वो क्यूट सी स्माइल देने लगे। एंड आई टोल्ड माय सिस्टर इन लॉ सेड वाओ इनको मेरा नाम कैसे पता है? मैंने कहा तू भगवान के आगे खड़ी है। मतलब इतना अमेजिंगली प्यार, इतना मतलब मैं वो मेरे पास शब्द भी नहीं है बोलने के लिए जो गुरुजी ने हमारे को लव अफेक्शन, ही हैज फिल्ड कंप्लीटेड आवर लाइफ। मतलब अब ऐसे लगता है कि बाकी कोई भी आपके साथ हो ना हो, अगर गुरुजी साथ है सो आपको किसी की जरूरत नहीं है। मतलब इफ लेट द होल वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू, बट इफ गुरुजी इज विद यू, यू आर अ विनर। एंड हमें और कोई चाहिए नहीं। हमारे सब रिश्ते, सब रिलेशनशिप्स, चाहे वो स्पाउस का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे बच्चों का हो, इट्स ऑल देयर बिकॉज ऑफ गुरुजी। अगर गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इट इज कंप्लीट वॉइड। मतलब he is a member of our family, he is a head of our family, he is your love, he is your father। आप उनको किसी भी फॉर्म में लेंगे, he is with us। So I mean we are so lucky to be in such a big world। We are those handful of people who are in his sharan, who are in his canopy। And I must say this that सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं। मतलब गुरुजी तो अपने आप ही उनको पता है प्रायोरिटी क्या है हमारे में, हमारे को ठीक करने की। बिकॉज आई बिलीव पहले वो आपको लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ देते हैं, एंड देन मनी एंड एवरीथिंग फ्लोज। वो भी उन्हें पता है कि प्रायोरिटी क्या है। अगर हम कुछ मांग रहे हैं, वेल्थ मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं और हमारी लाइफ ही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सो लेट अस वी ऑल कैन जस्ट डू सरेंडर, बिकॉज सरेंडर इज द इजिएस्ट थिंग। हमें तो अगले आने वाले पल का भी नहीं पता दैट हमारा कैसा होगा, वो हमारे पास लाइफ कितनी है। तो मांगना हमें पता ही नहीं, हमें मांगना क्या है। मतलब हमें कुछ जरूरत ही नहीं है इस दरबार में आके मांगने की भी, बिकॉज गुरु जी स्ट्रीम लाइन्स यू, योर लाइफ एंड एवरीथिंग। बट ऑल वी हैव टू डू इज टू हैव कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर, बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये पक्का है, आपके सिर तक पानी आ जाएगा, गुरु जी आपको डूबने नहीं देंगे। We also had some phase where we had such bad in work, I mean something bad in the business, and it was such a source of worry, but Guruji ne sab kuch theek kar diya। Even in these times when COVID times, when people were suffering and everything, Guruji has always kept us protected। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको प्रॉब्लम आती है, बट देन यू आर सेव्ड इन सच अ लवली वे। मतलब वो सिर्फ 10% हम बेयर करते हैं, बाकी गुरुजी सारा कटवा देते हैं। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क गुरुजी, गुरुजी मुझे पतला कर दो, पतला कर दो। ही यूज्ड टू से पतला जाके सैर करया कर, तेनू किसी चीज की लोड़ नहीं। मतलब ही यूज्ड टू आंसर दीज थिंग्स आल्सो। छोटे छोटे प्रश्न, हमारे मन के अंदर की डेड थॉट्स जो हम चाहते थे कि हमारे को आंसर करें गुरुजी, वो करते थे। और हमें भी नहीं याद रहता था, बट वो थॉट उनको याद रहता था। एक बारी मेरे से गुरुजी ना हर वक्त सत्संग करवाते थे। बहुत सारे वीआईपीज आते थे, टॉप शॉट्स आते थे, सेलिब्रिटीज आते थे, एंड गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज मेक मी डू सत्संग टू देम। एंड एक बारी आई हैड थॉट कि मैं आज गुरुजी को आई लव यू बोलना है मुझे जाके।
एंड तब उस दिन ये सारे लोग बैठे थे, शत्रुघ्न सिन्हा, मेनका गांधी, वरुण गांधी एंड मुरली मनोहर सर, अमर जोशी, एंड आई मीन एवरीबडी वाज सिटिंग. सो गुरुजी ने मुझे बोला अपना सत्संग, द स्पीव द सत्संग सुना, वेंटिलेटर वाला. तो मैं आई स्टार्टेड टेलिंग. तो मैंने मन में सोचा आज नहीं मैं बोल पाऊंगी गुरुजी को, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद द सत्संग. तो जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी ने मुझे खुद बोला कि ਜਦੋਂ तू आई सी तब ते होर गल सी, हुन तू गुरु बिना नहीं रह सकती. So this is exactly what I wanted to tell him, that I love you Guruji. तब मैंने उन्हें बोला गुरुजी I love you, and he said love you, love you. मतलब आपका एक डेड थॉट, आपके मन में क्या चल रहा है गुरुजी उसको भी पूरा कर दे अगर वो आपके लिए अच्छा है तो. Then my parents were in North Delhi, and since I'm the only child of my parents, so I wanted that they should shift near my house because it's always better for the both sides to be near each other. So Guruji told me किधर रहने ने तेरे माँ प्यो. Then I told him Guruji इधर है. कहते उन्होंने अपने मेरे लिए. I said thank you Guruji, and I was like literally shouting without realizing कि कितने बड़े भगवान सामने बैठे हैं. But हम लोग अपनी हरकतें करते हैं जो बहुत छोटे लेवल की होती है. ये नहीं पता कि हमारे को सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो गुरुजी खुद ही मिल गए हैं, तो हमें कुछ और चाहिए नहीं, ना मांगने की जरूरत. So my parents shifted, and coming from North Delhi to South Delhi requires a lot of funds to be added. But to our surprise, instead of the funds being added, 5 lakhs was saved, and they could get a house. Earlier they were on the second floor, now they were on the ground floor. My father's health started getting better when he shifted. So that's how his blessings are. मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी इतना ब्लेस हमें करते हैं और हमारी सारी अच्छाइयाँ, मतलब हमें अच्छा इंसान बनाते हैं. He cleanses us. I think I have one thing to say, that इधर आके भी अगर आप प्योरिटी नहीं ला सकते हो अपने अंदर, या गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हो, then there is no point. Guruji doesn't want anything out of us. He just wants us to be a good human being, and we all have so much to improve. And if we are on the project, on the journey of improving ourselves, I think वही हम दे सकते हैं उनको. हम गुरुजी को और कुछ नहीं दे सकते. We can be just thankful in the be in the state of gratitude कि आपने सब कुछ दिया है. Thank you Guruji, and we can try to be a better human being. We should. गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत चीजें दी. मतलब जो चीजों का मेरे को इतना ब्रोंकाइटिस होता था, मेरे नीज में पेन होता था, वो पता ही नहीं कहाँ गई चीजें, because how he just changed everything. Then one more thing I have observed कि जब गुरुजी के पास आप आते हो तो आपकी जो नेगेटिविटी होती है आपके साथ, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ पीपल हो, इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशंस हो, इन द फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट्स हो, इवन जो सबॉर्डिनेट्स आपके काम कर रहे हैं, जो नेगेटिव होगा आपके लिए, गुरुजी उसको सबको हटा देते हैं. मतलब गुरुजी रिमूव्स एवरीथिंग, इन द सेंस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी वो नहीं रहने देते अपने हमारे पास, बिकॉज हमारी ब्लेसिंग्स ही नहीं हो पाएंगी जब हमारे आसपास नेगेटिव लोग होंगे. सो कई हमारे बहुत नियर एंड डियर लोग जो आपके लिए लाइक ब्लड रिलेशनशिप्स, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं. योर फ्रेंड्स, फैमिली, and I experienced the same. All the negative people were out of our life, who created disturbances, who created differences in the family. And bonding आपकी family की बहुत अच्छी कर देते हैं गुरुजी. He changes everything. And I believe that Guruji always wanted us to be good to each other, especially from the place we started. We start from home, so our home has to be good first, then the outside world, because home is first, the family is first. अगर हम अपनी family के साथ ही ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो बाहर हम क्या कर सकते हैं? So it starts from your own place. The way we say that charity begins at home. So Guruji हर एक को इतना मौका देते थे इम्प्रूव करने का. एंड ही सच अ लव, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ उनसे अमेजिंग भगवान. मतलब मैं तो, अगर मुझे कोई बोलता है कि किधर कहीं जाना है, तो मुझे मेरी तो लाइफ की जर्नी की बिगिनिंग और एंडिंग गुरुजी है. मतलब इफ समबडी हैज टू टेल मी यू हैव टू गो समवेयर, आई विल नेवर गो, बिकॉज आई नो आई हैव मेट द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, and I don't need anybody. So that is Guruji. We can always be thankful, and we have to be
इंडेटेड टू हिम कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है। हमारे डेफिनेटली कोई बहुत अच्छे कर्म हो गए जिनको जो अब फ्रक्टिफाई हुए हैं, जो हमें गुरुजी मिले। This is what I can say. I mean, then one more thing I'll tell you. मेरे हम लोग मतलब गुरुजी आपके घर में इवन आपके पेट्स का भी ध्यान रखते हैं। I was traveling somewhere and my domestic help used to beat my pet, which I didn't know. So Guruji came in my dreams and told me that अपने डॉग का ध्यान रखा कर। मतलब एक इतना बड़ा भगवान और आपकी इतने पर्सनल लेवल पे आपके वो साथ हैं। What else can we expect? Then when Guruji left, he took Mahasamadhi, left his physical form. I felt as if I am an orphan. मतलब सब चला गया है, सब खत्म हो गया, because Guruji नहीं है तो क्या है? So Guruji came in my dreams that very night and he said, मैं किधरे नहीं गया हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैंने सिर्फ अपना चोला बदला है। मतलब इतने पर्सनली, इतने अमेजिंगली भगवान आपके पास आके बोल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए लाइफ में? नथिंग यू वांट, नथिंग। ट्रस्ट मी, गुरुजी जब होते हैं आपके पास, फाइनेंसेस हो ना हो, बैंक बैलेंस हो ना हो, आपका कोई काम नहीं रुकता है। He changes you completely. He wants you to live in the moment, present moment, and enjoy your life. हम लोग आधा टाइम यही टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में निकालते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। We believe in the non-existential reality, which actually has got no validity. So when you come to Guruji, just be a good human being and do right karmas. हमें किसी से डरना नहीं है, हमें सिर्फ अपने गलत कर्मों से डरना है। Guruji never wanted us to socialize and to मतलब Guruji never wanted कि इतना फ्लैम, he wanted us to be the best dressed and all, but इतना socializing वगैरह जैसे अब तो कम होता है, बट पहले बहुत स्टार्ट हो गया था वो। I don't think he ever liked it. And we can be just thankful and matlab I can say one thing, I can keep writing, saying his mahima, but right now, I mean, there are a lot of incidents which maybe I'm not able to recollect right now, but ye mujhe pata hai ki Guruji is साक्षात भगवान, एंड हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते अपनी लाइफ से, अपने अपने आप से, कि हमें वो मिल गए हैं। क्योंकि अगर हमारे पास गुरुजी हैं तो ट्रस्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब वी आर कंप्लीट। आई थिंक आई हैव टू ऑफर दिस मच and I'm sure if I remember more we'll do it some other day, and thank you to Guruji for giving me an opportunity. हाँ जी आंटी, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे जी 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 कुछ जी और सत्संग भी शेयर करें। ओके इतने प्यारे सत्संग आपने शेयर किए हैं, और भी कुछ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। Okay, okay. Then give me a minute. Let me just recall. Okay, एक सत्संग मैं श्योर आपको श्योर और आंटी, नो बताती वरीज। हूँ। हाँ जी, एक आपको मैं और बताती हूँ। हम लोग हमें तो पता नहीं था कि गुरुजी would leave us physically, तो गुरुजी ने हमें बोला सबको कि अपने अपने सत्संग जो हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप लेकर आओ। तो what I did, I wrote it on a piece of paper and I took it to गुरुजी। तो बड़ी डांट पीटी गुरुजी से कि तू पुठे काम कर दिया। एंड आई वाज सेइंग मैंने पता नहीं क्या पुठा काम करा है, बट ही वांटेड अस कि वो कंपाइल करके सीडी में डालो। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अब मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो मैं नेक्स्ट डे सोच के गई थी कि मैं गुरुजी को नहीं दूंगी आज, क्योंकि मुझे कल उन्होंने डांटा है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम, आई विल गिव टू समवन एल्स। तो जैसे ही मैं अगले दिन सीडी लेकर गई, गुरुजी बिल्कुल सामने ले आए हैं, एंड उन्होंने सबसे पहले वो ली मेरे से सीडी और अपने सीट के ऊपर रखी। सो दोज वर द सत्संग्स एंड आवर एक्सपीरियंसेस व्हिच वर देयर इन द लाइट ऑफ डिविनिटी। मतलब फर्स्ट एडिशन जो गुरुजी का ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी, उसमें हमारे सत्संग हैं। वी वर द चोजन वंस बाय द गुरुजी। मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोगों की गति नहीं थी गुरुजी से बिना मिले, तभी हमें उन्होंने बुलाया था, बिकॉज वी वर इन सच अ बैड सिचुएशन। ट्रस्ट मी, मैं ये बात बोलती हूँ कि जब मैं गुरुजी पे गई थी तो आई वॉज अ पर्सन विद सच लो स्पिरिट्स and with kind of 0% mental peace, but Guruji ne, it changed, he changed our lives from 0 to 100. Today I have 100% mental peace, all thanks to Guruji. 360-degree turn of life. And मैं ये बोलती हूँ कि तब तो मैं डिप्रेस्ड या लो फील करती थी। टुडे आई हैव द कैपेसिटी टू गिव डिप्रेशन टू अदर्स। दैट इज व्हाट आवर गुरुजी डज। मतलब एंड मैं आपको
ये गारंटी है कि अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हो, इफ यू ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुरु जी आपके साथ 100% होते हैं। आप अपने अगर कर्म सुधार के रखिए, अपने आप के नए कर्म ऐड नहीं करो, बी अ गुड ह्यूमन, ट्राई टू हेल्प अदर्स। इफ यू कैन नॉट हेल्प एनीवन, डोंट स्पॉइल एनीवन, डोंट सेबोटाज एनीबॉडी, और डोंट बैक बाइट। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो गुरु जी का आपके साथ इमेंस इमेंस ऑरा और इमेंस शक्ति है। आपकी हर छोटी से छोटी चीज he takes care. I mean, you cannot even imagine to what extent he is in our lives. And I to say one thing, whenever whatever I do, when I start from my home, वैसे गुरुजी साथ चलो, whenever I drive, ऐसे गुरुजी आप चलाओ। मतलब मैंने तो इतना एक्सपीरियंस करे हुए हैं। जब हम जाते थे तो हम सत्संग सुनते थे कि किसी की गाड़ी बिना पेट्रोल के चल गई, किसी की गाड़ी पंचर होके चल गई। मैंने ये सब एक्सपीरियंस लिए हुए। मैंने कहा गुरुजी उनकी हो सकते तो मेरी क्यों नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने पंचर्ड गाड़ी चलाई हुई है 25-25 किलोमीटर, जस्ट टायर में एयर लेवल ठीक करवा के, और घर पे आके वो डिफ्लेट होता था टायर। एंड मतलब मैं तो वही बोलती थी गुरुजी, जो भी मैंने सत्संग सुने थे, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी तो एक्सपीरियंस करा हुआ। एम्प्टी गाड़ी, फ्यूल पे एम्प्टी गाड़ी चली हुई। मतलब वी वर, हमें तो समझ ही नहीं थी ना। मैं तो ये बोलती हूँ कि वी वर सो इग्नोरेंट, हमें पता ही नहीं था कि हम इतने बड़े, मतलब वी हैव कम इन फ्रंट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ही इज, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं हम। और गुरुजी ने कभी ऐसे अपना को शो नहीं करा है। वो हमारे साथ इवन जमीन पे बैठ जाते थे। एम्पायर स्टेट में टू सिट, नीचे आके हमारे साथ बैठ के बात करते थे। मतलब हमने चाय प्रसाद पिया हुआ, वी वर हैंडफुल ऑफ पीपल दैट टाइम। और इतने इतने बड़े वीआईपी टॉप शॉट सब आते थे, बट गुरुजी नेवर डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब वो हमारे से बात कर सकते थे, तो यू फेल्ट सो प्राउड दैट ही इज टॉकिंग टू अस। मतलब वो जो टाइम था, इट वाज अ डायमंड पीरियड। एंड आई मस्ट से दैट कहते हैं कि जब आपका बहुत खराब टाइम होता है या आने वाला होता है, तब आपको गुरुजी मिलते हैं। बट आई बिलीव कि आई थैंक ऑल दो स्टार्स, बिकॉज वो अगर मतलब ऐसे खराब नहीं होते उस समय के, तो मुझे गुरुजी मिलते ही नहीं। सो आई एम सो थैंकफुल टू दो स्टार्स, दैट नेगेटिव people, or you can say the negativity, that made me meet my Bhagwan, my Guruji. And today he is so much so much a part of our life that I cannot imagine my life to be a day without him. And मतलब आपकी एक थॉट को गुरुजी किस तरीके से ब्यूटिफुली, अमेजिंगली चेंज करके, और या सेम में भी जो आपके लिए ठीक है, he does it. My daughter, she was 4 years at that time, and today she's 20 years, and by his grace she's doing so well. I mean, there is so much of 1 second, बेटा इसको ले लो, देख लो, उसको उधर ले जा बेटा बाहर। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। So you know how Guruji blesses you, and he, मतलब I have to just say this, that आपकी सोच जहाँ पे खत्म होती है, वहां पे गुरुजी स्टार्ट होते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते how he changes everything for you. Srishti changes for you. I have seen that. My daughter had board exams, and she was a science student, and she was when she did her chemistry exam, she was very worried that I have not done it well. I'm not going to score more than 70, and this will spoil my percentage. But I told, I said, तूने अपना काम करा, गुरुजी अपना करेंगे, don't worry. उनको पता है ना तेरे को कितना देना है। And you won't believe, she got 90% in chemistry, and the total aggregate was 96%. So she said, Mom, ये मैंने तो करा ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी has changed the number from 70 to 90. So आप अपना कर्म करो, आगे जो वो कर रहे हैं वो आप पता भी नहीं है आपको क्या कर देंगे वो। मतलब आपकी सोच खत्म हो जाएगी, पर गुरुजी वहां से स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज हिज वे ऑफ बीइंग। एंड आई बिलीव यहाँ मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आपकी सोच, आपकी मांग छोटी है, उनकी दात बहुत बड़ी है। मतलब मैंने ये खुद देखा है कि we have traveled to America, we have traveled to other countries without having any bank balance. When we are talking that we could not have afforded a smaller trip, but then Guruji has given us America in that same time and with the same funds. तो वो funds arrange होना, सारी चीजें timely होना,
is all he who does it. Guruji is our powerhouse. So अब हमारे को उनके लायक बनना है बस. This is what I can say. We cannot talk and beat our own drum the way that ये ऐसा होता है वैसा होता है. We don't have to use our brain. वो जैसे गुरुजी कहते थे, अकल ते रफल छोड़ के आओ. ईगो एंड अपनी अकल, इफ्स एंड बट्स, बिकॉज दिस इज वन प्लेस जहां कुछ भी मिरेकल हो सकता है. when he can give life to a dead person, when he can cure somebody, जो मतलब मुझे याद है जो मेरी तबीयत खराब होती थी और आज कुछ भी नहीं है, गुरुजी के सिर्फ एक वर्ड से कि तेनू कुछ नहीं है. एंड मतलब हर चीज विद नो टाइम, इट इज सच अ डिवाइन वे, मतलब इट इज 100% डिवाइन इंटरवेंशन. गुरुजी आपकी लाइफ में आके आपका पूरा हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट सब चेंज कर देते हैं. नो पत्रीज, नो हॉरोस्कोप, नो एस्ट्रोलॉजी वर्क्स हियर. ओनली गुरुजी की ब्लेसिंग्स वर्क. एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग टू गुरुजी बट only thank you. Thank you for being in our life, Guruji. Thank you for changing our lives. Thank you for being with us, because he is everything. मतलब everything. आप सोच भी नहीं सकते हो जो गुरुजी आपको देंगे. आपकी सोच छोटी है बट गुरुजी बहुत बहुत, ही इज वेरी, मतलब उनको सब पता है आपको राइट टाइमिंग. टाइमिंग उनकी है, चीज उनकी है. हमें सिर्फ थैंक यू कहना है. मतलब हाँ, मैं आई हैव टू से दिस थिंग. You can all read the satsang. It's by the name of Anu Munjal in Light of Divinity also. So आपको वरीज जो थी पहले जब हम जाते थे गुरुजी पे, वो तो अब वरीज पता नहीं गई कहाँ. मतलब they are no more there. अब तो वो है ही नहीं. They have actually gone away from all of us. So and then I'll tell you my great grandmother, she expired. तो उनका जब वो सेरेमनी थी, जब भोग सेरेमनी होती है, तो one of my relatives, he came to a house and he said कि ये कौन है. He was asking about गुरुजी. उनका स्वरूप लगा हुआ था घर में. तो मैंने बोला ये तो मेरे, he is my beloved. That's how I told. तो बाद में उन्होंने बताया कि वो तो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट थे. मतलब एंड दिस इज मच आफ्टर दी गुरुजीज फिजिकल, व्हेन ही हैड टेकन महासमाधि. तो गुरुजी जो मतलब फिजिकली वहां पे उनको दिख रहे थे. तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं. मतलब आप ये मत सोचो कि वो है नहीं. उनकी पावर आई बिलीव हैज गॉन मच मच मोर, एंड नाउ ही इज बियॉन्ड एनी रूप एंड बियॉन्ड एनी लिमिटेशन. तो गुरुजी कैन डू एनीथिंग. ही माइट बी, आई एम श्योर ही इज विद अस एवरी मोमेंट. हमें सिर्फ उनको याद करना है और वो हमारे साथ है. एंड ये मेरी ऐसे करी हुई बात नहीं, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट स्पीकिंग. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. कुछ भी सिचुएशन आ रही होगी, आप उनका नाम लेंगे, वो सिचुएशन सेम नहीं रहती है. कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, सिर्फ उनको याद करना है आपको. एंड व्हाट ही डज. आई ऑल्सो हैड दिस कोविड एंड मतलब आई बीइंग एन एस्थमेटिक जो पहले थी मैं, मुझे एक भी स्टेरॉइड नहीं खानी पड़ी ड्यूरिंग माई कोविड. ऑल थैंक्स टू गुरुजी. माई सैचुरेशन वाज फाइन. मतलब ये तो साइड इफेक्ट्स हैं गुरुजी के पास यहाँ पे उनकी शरण में आने के, कि you don't have to worry. साइड इफेक्ट्स हैं. अब लोग कहते हैं कि हमारे को रोटी प्रसाद में ओम बन गया या चाय प्रसाद में ओम बन गया, स्वरूप दिख गया. मतलब इनमें सब में क्या है? हाउ डज इट मैटर? इट इज नथिंग. हमें भगवान मिल गया. गुरुजी इज साक्षात भगवान. जब हमें वो मिल गया तो ओम या कुछ भी रोटी प्रसाद में बने या चाय प्रसाद में बने, इट डजंट रियली मैटर. गुरुजी का लंगर प्रसाद इज योर दवाई. अगर आप वो खा रहे हैं तो 101% आपकी सारी चीजें ठीक हो रही हैं. अब हम कहते हैं कि हमें बुखार भी ना हो, बट अगर हमारा कैंसर ठीक करके गुरुजी ने फीवर कर दिया तो व्हाट एल्स. तो वी हैव टू बी थैंकफुल. वी कैन नॉट बी नाशुक्रा कि हम मना, हमें हर वक्त कंप्लेंट्स हैं. नो, yes manship and thank you Guruji. And trust me, if we all do that, our life will change more and for better, because वो तो देने के लिए बैठे, हमें लेना नहीं आता है. I think that's what I can say more, because on the spur of moment I'm unable to recall anything else. And this is what I can tell you. I'm sure there'll be much more additions later on. Yeah. जय गुरु जी, जय गुरु. आज हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं, सो उनको भी इनवाइट करेंगे. अर्चना आंटी आए और सत्संग शेयर करें. जय गुरु जी. गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में, गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन. और आई हुई सारी संगत जी को
नमस्कार, जय गुरु जी। और गुरु जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी, यही उम्मीद और विश्वास है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी ने जब ये अपने हैंड साइंड सिग्नेचर, उनके डिवाइन हैंड से जब उन्होंने अपने स्वरूप पे ये साइन किए थे, उस समय ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ये ऑलवेज वर्ड जो है ये परपेचुअल है, टिल एटर्निटी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए गुरुजी ने कहा ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये इतना बड़ा रीअश्योरेंस है गुरुजी का पूरी संगत के लिए, इतना बड़ा रीअश्योरेंस कि कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमें चुना है। इतनी बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है कि गुरु जी ने हमें चुना है। जब हम कभी किसी बहुत वीवीआईपी से मिलने का कुछ अपॉइंटमेंट लेते हैं, देन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, व्हाटएवर, वो डिसाइड करते हैं कि वो कब मिलेंगे आपसे, और वो मिलेंगे भी या नहीं, और कहाँ मिलेंगे। तो हमारे गुरु जी वो इस सृष्टि के मालिक, उनसे बड़ा कौन है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें मिलेंगे और हमें इसी जन्म में मिलेंगे। बहुत बहुत कृपा मालिक की, बहुत बड़ी बात है ये। और इतना गुरुजी हमेशा ऐसा कर देते हैं, मन में ऐसे भाव ला देते हैं। वो सारा समय जब वो गुरुजी के सामने का, जो उनके फिजिकल फॉर्म के सामने का समय है, वो लगता है कभी वो पुराना ही नहीं होता है। ये जो सत्संग इतने सुंदर गुरुजी करवा रहे हैं, चलते आ रही है ये इतनी सुंदर परंपरा गुरुजी के समय से, गुरुजी के सामने से, वो इसीलिए गुरुजी ने शुरू करवाया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ बराबर, वो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स का झरना है वो निर्झर, वो वैसे ही बहता रहे, दोनों तरफ ब्लेसिंग मिलती रहे। और अपने गुरु की उस्तत करके हम सबसे उच्चा पाठ करते रहें, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा है अपने गुरु की उस्तत करना सब तो ऊंचा पाठ है। तो ये पाठ जो हम लोगों को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी के सामने के ही कुछ सत्संग में बताऊंगी शॉर्ट में, क्योंकि वो एक ऐसा समय है कि मेरा मन नहीं भरता कि मैं वहां से वापस आऊं, वहां से बाहर निकलूं, और मैं मेंटली, स्पिरिचुअली, एस्ट्रली वहीं पे रहना चाहती हूँ गुरुजी के सामने। गुरुजी के सामने वैसे ही संगत एम्पायर स्टेट में वैसे ही बैठ के शब्द चल रहे हैं, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे बैठे, आप इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, अपने मन की आंखों से देखिए, वैसे ही मुस्कुराते हैं वो बैठे हैं। जब तक शब्द बाणी चलती है कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपनी नजरों से देख देख के निहाल करते हैं, ब्लेस करते हैं। और जब शब्द बाणी खत्म होती है, उठ के लोग संगत बाहर आने लगते हैं, बाकी लोग लंगर प्रसाद आने के लिए सब एक दूसरे के सामने फेस टू फेस ऐसे बैठ जाते हैं। लंगर की पतली पतली मैट्स आने लगती हैं, और पीछे जो बैकग्राउंड में गुरुजी के डीजे अंकल म्यूजिक बजाते हैं, वो बिल्कुल से चेंज हो जाता है। और वो इतना चार्ज्ड एनवायरनमेंट, जो अभी अभी बिल्कुल ऐसा था कि पिन ड्रॉप साइलेंस है, अभी अचानक से वहां पे लगता है कितनी रौनक, कितना मेले जैसा। लेकिन ये नहीं है कि हौच पौच हो गई, या ये नहीं है कि शोर मचने लगा, बिल्कुल भी नहीं। सेम डेकोरम, सेम डिसिप्लिन, जैसे कि हर कोई अपने अंदर से ही एक कमांड फॉलो कर रहा है कि अब बाहर निकलना है, अब अंदर आके बैठ जाना है। ये कौन करा रहा है? ये गुरुजी करा रहे हैं। फिर वो दिव्य लंगर प्रसाद आके उसको गुरुजी के सामने बैठ के खाना, और उसी प्रसाद से गुरुजी ने आपको न जाने क्या क्या ब्लेस कर देना। कभी इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं, फिर आपको अलग से कुछ भी उनसे बोलना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। अब आजकल नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी के
परम पावन नवरात्र चल रहे हैं इस समय, और सारी संगत जी को बहुत बहुत मंगलमय हो नवरात्रे। और जब गुरु जी के यहाँ जाते थे हम, कभी ऐसा मन में आया नहीं कि ये कुछ अलग करना है, या फिर जैसे नवरात्रि चल रही है, कई संगत आई एम श्योर जो जिनके नवरात्रों के फास्ट भी होते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन जब गुरु जी के यहाँ जाते थे तो कभी मन में कोई भी शंका या कुछ भी इस तरह का डाउट नहीं आया कि नवरात्र हैं तो लंगर प्रसाद में तो प्याज लहसुन सब कुछ बहुत अच्छे से पड़ा होता है, लेकिन वो गुरु जी का दिव्य लंगर प्रसाद है, उसको पदार्थ की तरह नहीं देखना कि इसमें प्याज है, इसमें लहसुन है, इसमें क्या है क्या नहीं है। वो गुरु जी का बहुत ही दिव्य प्रसाद है, इसलिए उसको सिर्फ प्रसाद की तरह लेना है। नवरात्रों पे जब हम जाते थे कभी भी मन में नहीं आया कि प्रसाद है तो इसमें अगर घर में लहसुन प्याज नहीं खा रहे तो यहाँ पे कैसे, कभी भी मन में नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। और ये गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कभी ऐसा होता था फास्ट भी है, लेकिन जब गए गुरुजी के यहाँ पे तो गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही वो फास्ट खोला, व्रत को उसी दिव्य लंगर प्रसाद से खोला, गुरुजी के सामने बैठ के। जिसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, वो सामने बैठे हैं, तो और क्या चाहिए। किसको रिझाने के लिए, किसको मनाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। वही भगवान सामने बैठे हैं, वही भगवान जो हमें खुद से खिला रहे हैं वो लंगर प्रसाद, तो मन में कभी कोई थॉट आया ही नहीं। जब गुरुजी के दरबार में जाते थे एम्पायर स्टेट में, सबसे पहले तो, अब चूंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी जो शक्ति हैं उनके दिन हैं, शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुजी के दरबार में मैंने देखा गुरुजी ने कितना आंटियों को महत्व दिया। ये जो हम आजकल विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या वैसे भी, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, ये जो सारे आजकल इश्यूज हैं, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, इवन अपने इंडिया में भी बेटियों को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। तो ये सब कुछ जो है गुरुजी के दरबार में मैंने देखा राइट फ्रॉम डे वन कि कितना प्रैक्टिकल गुरुजी ने करके दिखाया। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। ये जो थ्योरीज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाए। जब गुरुजी के दरबार में हम गए, और मैं तो बिल्कुल ही, एज आई सेड मेनी टाइम्स, टोटली नोविस, नाइव, एलिस इन वंडरलैंड। तो मैं देखती थी कि ये कैसी जगह है। गुरुजी महाराज, आंटियों को इतना रिगार्ड मिलता है यहाँ पे, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड, कि गुरुजी महाराज ने खुद से चुना आंटियों को सेवा भी करने के लिए, उनके चरण दबाने के लिए गुरुजी महाराज ने चुना, और आंटियों को ही चुना। मैं देखती थी बड़े से बड़ा वीआईपी हो, ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन जब वो गुरुजी के दरबार में आता था तो जो भी अंकल होते थे वो बड़े ही हम्बल हो जाते थे। भले ही वो बाहर जाके न जाने कितना रौब चलाते हों, लेकिन गुरुजी के दरबार में आके सारे अंकल गुरुजी के सामने बिल्कुल हम्बल हो जाते थे, और सिर्फ आंटियों की चलती थी वहां पे। वो इसलिए क्योंकि गुरुजी महाराज ने नारी शक्ति को, आंटियों को बहुत रिगार्ड दिया। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, कितना हम इसके लिए गुरुजी के कृतज्ञ हैं। जब गुरुजी के दरबार में जाते थे, मेरे अंकल और मैं हमेशा साथ में जाते थे, लेकिन जब वॉक करके अंदर जाने लगते थे तो जाते जाते अचानक क्या होता था, मेरे पैरों में जैसे स्प्रिंग लग जाते थे। मुझे लगता था मैं भाग के पहले अंदर चली जाऊं, गुरुजी के सामने पहुंच जाऊं। इतनी वो मैग्नेटिक जो पुल होती थी, वो जो फ्रेग्रेंस का एक घेरा, जो खुशबू का घेरा आपके इर्द गिर्द रहता था, जो आपके साथ रहता था हमेशा और चलता था, लगता था सीधे जाके बस जैसे गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टिका दो, और वही होता था। तो अक्सर मैं पहले आगे चली जाती थी, अंकल पीछे बच्चे को लेके आते थे।
और गुरुजी बड़े मुस्कुरा के देखते थे, बड़े मुस्कुरा के। गुरुजी की वो जो मुस्कुराहट थी वो इतनी दिव्य थी, इतनी नादान शरारती बच्चे जैसी भी, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी दिव्य कि सिर्फ ईश्वर की हो सकती है। एक बार मैं सामने गई गुरुजी के, और मैंने मेरी प्रेगनेंसी में पूरे, मैंने कई बार शेयर किया है सत्संग में, मैं गुरुजी के सामने थी और मैंने वेट गेन कर लिया था, और गुरुजी ने मुझे देख के बड़ी शरारत से कहा, मोटी। और वो जो शरारत थी उनके चेहरे पे उस समय, लगा जैसे आप बिल्कुल सखा भाव से गुरुजी के साथ में है, बिल्कुल सखा भाव से, जैसे कृष्ण थे जो नटखट थे। सारे ईश्वर, सारे भगवानों के रंग गुरुजी में है, सब कुछ उन्हीं में है, चाहे वो माता रानी हो, चाहे कृष्ण हो, सब कुछ उन्हीं में है। गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में, मेरी नजरें हमेशा पड़ती थी जो एक दीवार पे तस्वीर लगी थी, एक लगा हुआ था जिसमें कि एक श्री सिद्ध दुर्गा यंत्र और एक श्री लक्ष्मी स्तोत्रम करके लिखा हुआ था, और वो था, उसमें माता रानी की, दुर्गा माँ की सिंह पे बैठी हुई मूर्ति थी, और मुझे बहुत अपील करती थी वो, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे देवी देवता गुरुजी के दरबार में हैं, माता रानी भी हैं। इसीलिए, और गुरुजी ने बेटियों को बहुत प्रोत्साहित किया। जब मैं गुरुजी के सामने, आई कंसीव्ड विद इन 2-3 months, और जब मैं गुरुजी के सामने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में उस सुंदर सुखद यात्रा में गुरुजी के सामने बैठती थी और वो लंगर प्रसाद खाती थी, और जब मेरी बेटी हुई हरियाली तीज के दिन, सोमवार के दिन, और उसको हम गुरुजी के चरणों में लेके गए आफ्टर 40 days और गुरुजी के चरणों में रख दिया, तो गुरुजी ने फिर से मुस्कुरा के ब्लेस किया उस बेटी को मेरी, और आज वो 16 years हो गई है, और इतने कनेक्टेड बच्चे हैं गुरुजी से। मेरी छोटी वाली बेटी, उसको गुरुजी ने, वो मेरे लिए गुरुजी का, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, पार्टिंग गिफ्ट है, क्योंकि 27 मई का जो वो 2007 का आखिरी संडे था, जब गुरुजी के दरबार में आखिरी बार गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन हुए थे, उस दिन जो लंगर प्रसाद खाया था, ठीक उसके 9 months के बाद में मेरी छोटी वाली डॉटर हुई, वो गुरुजी का प्रसाद है। और ये दोनों ही बेटियां गुरुजी की, इतनी सारी बेटियां गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड हैं। तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग के तरीके अलग है, हम कभी समझ नहीं पाते। कभी कभी हम अपनी ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है उससे हर चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं, रैशनलाइज करना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी उन सब से बहुत परे हैं। तो सिर्फ गुरुजी के चरणों में सरेंडर करना चाहिए और कुछ भी नहीं। एक बहुत छोटा सा लेकिन लेटेस्ट सत्संग में 2 मिनट में बताती हूँ, मेरी छोटी बेटी का है, सिंस आई मेंशन्ड अबाउट हर। अभी लास्ट वीक यहाँ पे यूएस में सब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक व्हाइट सुप्रीमेसी, आई वुडंट डिनाई इट। इसलिए स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी, अनदर ब्राउन गर्ल, जो पाकिस्तान से है, और उसको वो थोड़ी सी उतनी लाइक ऐसी नहीं है कि बहुत फाइट कर सके अपने लिए, तो उसको कुछ व्हाइट बॉयज थोड़ा सा उसके साथ में मीन हो रहे थे। अभी वो सिर्फ 8th grade में है, बाय द वे, शी इज ओनली 13. So my daughter wanted to fight for her. I said, it's okay, take it easy. And she said, no, I have to fight for her. And then she prayed to Guruji, और next day पता लगा वो सारे boys, they were called by the principal, और उनको whatever, उनका period change हो गया या जो भी हुआ, they were not in the picture anymore. तो ये गुरुजी का कनेक्शन है जो उनकी बेटियों, उनके बच्चों के साथ में गुरुजी का खुद से उन्होंने जोड़ा हुआ है। इसमें हमारा कोई योगदान होता ही नहीं है, सब गुरुजी के हाथ में होता है। गुरुजी हमेशा अपने सारे बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। सो इसी के साथ में आज के लिए सत्संग को विराम देते हैं, और थैंक यू सो मच एंड शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका भी बहुत शुक्राना, सारी सेवादार टीम का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।